बस अब कुछ ही क्षण बाद शुरू होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद यहाँ शुरू होगी। खासतौर से अगर बात की जाए भारत और फिनलैंड के, हमने भी देखा किस तरह के संबंध रहे हैं, उन संबंधों को लेकर और क्या कुछ खास भारत की रणनीति रही है, इसकी जानकारी हम देखेंगे। इस फिलहाल प्रेस वार्ता में दी जाएगी। विदेश मंत्रालय की ये प्रेस वार्ता। तो अब से कुछ देर बाद जो जानकारी है वो भी यहाँ साझा की जाएगी, बताया जाएगा क्या कुछ खास। अगर बात की जाए भारत के, जब हम कूटनीतिक संबंधों की बात करते हैं, किस तरीके से भारत की रणनीति रही है और कैसे फिनलैंड की भी अगर बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में वो नजर आता है। इसी को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस वार्ता है वो की जानी है, जो कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर शुरू होती हुई हमें नजर आएगी। और साथ ही साथ आपको हम बताएंगे क्या कुछ खास लगातार चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत और फिनलैंड के जो संबंध हैं उनको नई धार मिलती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे महत्वपूर्ण समझौते जो कि दोनों देशों के बीच यहाँ पर हुए हैं और उन्हीं की वजह से अगर देखा जाए एक नया अध्याय भी इसको माना जा रहा है। और इसी को लेकर अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे जो विदेश मंत्रालय है उसकी एक अहम प्रेस वार्ता होनी है, जिसमें तमाम ये जो जानकारी है वो यहाँ साझा की जाएगी। और साथ ही साथ उन तमाम पहलुओं पर, तमाम जो समझौते हैं उनकी भी जानकारी यहाँ साझा होगी। कैसे दोनों देश जो हैं एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में यहाँ अब हमें नज़र आने वाले हैं और कैसे दोनों देश जो हैं ना सिर्फ अगर बात की जाए जो साझेदारी है रणनीतिक रूप से, बल्कि आर्थिक रूप से भी अगर देखा जाए। अब आइए सीधा चलते हैं, सीधा रुख करेंगे इस प्रेस वार्ता का। क्या कुछ खास अहम जानकारी जो है इस प्रेस वार्ता। For this special press briefing, we have with us Secretary West, Shri C.B. George, and he is assisted in this press briefing by our Ambassador to Finland, Shri Hemant Kotalwar, as also Additional Secretary, North Europe in the Ministry of External Affairs, Srimati Pooja Kapoor. With that, I invite Secretary West to make his opening remarks, after which we'll take questions from the floor. Sir, over to you. Thank you, Randhir. Good evening to everyone. As you are aware, at the invitation of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the President of the Republic of Finland, His Excellency Dr. Alexander Stubb, is on a state visit to India from 4 to 7 March this year. This is his first visit to India in his present capacity. The President is accompanied by a high-level ministerial and official delegation, as well as a sizable business delegation. This reflects the importance that both sides attach to trade, business, and investment as key pillars of the bilateral relationship. He joined our Honorable Prime Minister at the inaugural session of the 11th Raisina Dialogue 2026 in New Delhi as the chief guest, and also delivered the keynote address a little while ago. President Stubb's visit comes close to the heels of the Finnish Prime Minister, His Excellency Mr. Petteri Orpo's visit to New Delhi for the AI Impact Summit in February this year. Prime Minister Orpo had also met our Prime Minister on the margins of the summit. The India-Nordic Summit has also provided an opportunity to the leaders of both the countries to remain engaged. Our Prime Ministers met in 2018 and 2022 on the margins of the first and second India-Nordic Summit in Stockholm and Copenhagen, respectively. President Stubb and Prime Minister Modi have remained in close, constant touch last year. The two leaders met on the margins of the G20 Leaders Summit in Johannesburg in October 2025. They also spoke telephonically at least on 2 occasions last year. During their meetings today, Prime Minister Modi and President Stubb have elevated India-Finland bilateral relationship to a strategic partnership in digitalization and sustainability. President Stubb arrived in New Delhi on 4th March
and was accorded a ceremonial guard reception at the airport. Today, he met Rashtrapati Ji at the Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Modi and President Stubb held wide-ranging discussions at Hyderabad House in restricted as well as delegation-level formats. They covered all aspects of bilateral relationship as well as regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi hosted a luncheon in honor of the President. Our Honorable Vice President and External Affairs Minister also called on President Stubb today. On 6 March, he will travel to Mumbai, where he will meet Honorable Chief Minister of Maharashtra, interact with the business leaders, and participate in India-Finland business event. He will also address the students at the University of Mumbai. India and Finland enjoy warm and friendly relationship. Over the decades, our relationship has evolved into a forward-looking, innovation and technology-driven partnership. Finnish companies have strong presence in India in areas such as telecommunications, digital solutions, clean energy, and smart manufacturing. Bilateral trade in goods and services is close to $3 billion. Trade and investment are expected to expand further with the coming in force of the India-EU Free Trade Agreement. In this respect, we have also agreed to double the trade by 2030. As you know, digitalization is an important aspect of our bilateral relationship. Finland's advanced capabilities in digital innovation align well with India's digital transformation initiatives. In this regard, the two sides have established a cross-sectoral joint working group on digitalization to advance cooperation in new and emerging technologies such as 5G and 6G, quantum communications, high performance and quantum computing, artificial intelligence, etc. A joint task force, 6G, has also been created to further expand the collaboration in this emerging field. At the same time, Finland's globally recognized expertise in clean technologies, renewable energy, and sustainable urban solutions makes it a natural partner for India. India and Finland will also be co-hosting the World Circular Economy Forum in India later this year. During the visit, both sides have reviewed and renewed the MOU on environmental cooperation to further the collaboration on sustainability and circular economy, including bioenergy and waste-to-energy solutions, power storage, green hydrogen, as well as wind, solar, and small hydropower. Science, technology, and innovation are key pillars of India-Finland cooperation. The two sides have agreed for joint research goals under implementation arrangement between Department of Science and Technology of India and Business Finland. It would advance research collaboration in areas such as renewable energy, smart cities, hydrogen technologies, waste management, electric vehicles, carbon capture, 5G, 6G, AI, microelectronics, and power electronics, etc. The two sides have also signed an MOU on migration and mobility partnership. It is expected to facilitate mobility of talent, including professionals, students, entrepreneurs, researchers, and academics. It also expected to provide enhanced access for Indian students, including internships and post-study employment opportunities. Considering the importance of cooperation in consular matters, the two sides have agreed to commence negotiations on extradition treaty and mutual legal assistance treaty and establish a consular dialogue between the respective foreign ministries. Both sides are also committed to promoting free, open, peaceful, and prosperous Indo-Pacific in accordance with the international law, including UNCLOS. In this regard, Finland have expressed interest to join the Indo-Pacific Oceans Initiative, which is welcomed by India. We also agreed to have cooperation in the Arctic-related areas.
Finnish Air reiterated its support to India's fight against terrorism, including cross-border terrorism. To conclude, this visit of President Stubb, coming soon after the India-EU summit, during which we announced the conclusion of the India-EU FTA, underscores the strong momentum in bilateral as well as India-EU relations. It reflects our strong commitment to both our partnership with the European Union and as a whole, and deeper bilateral engagement with its member states. In this context, Finland is a valued partner with whom we aim to expand cooperation in key sectors of mutual interest. The visit focused on 3 T's: trade, technology, and talent. Trade anchors our economic partnership, technology advances collaboration in digitalization and sustainability, and talent connects our societies through mobility. These priorities align with our Prime Minister's vision of Vikasit Bharat 2047, with Finland's strengths in innovation, sustainability, and education, making it a natural partner for India. This has been a very substantive and productive visit. The discussions have helped set clear directions for India-Finland cooperation in the near and medium term. I'll stop here. We would be very happy to take questions. Thank you. Floor is open. Akhilesh. Sir, I'm Akhilesh Suman from Doordarshan News. Finland is also an Arctic country. So did we talk anything about how we are going to cooperate on Arctic issues? Siddhant. Siddhant from Beyond. Sir, how much there was a conversation on the war in West Asia? We saw the Prime Minister making his remarks. If you can perhaps elaborate on that. Keshav. Thank you, sir. Keshav Padmanabhan from The Print. I just went through the joint statement, and of the 46 paragraphs, there's not one mention of the situation in West Asia. So I just want to echo the question on what were the international issues that were discussed, and with specific reference to the conflict, as my colleague Siddhant earlier asked, what did the 2 leaders sort of discuss, and was there any outcome or an understanding between them on how the situation has to be resolved? Thank you. Please. Abhishek. Abhimanyu, from CNBC TV 18. Sir, my question is that were supply chains discussed as far as strengthening of supply chains is concerned, as my 2 colleagues earlier also asked about the current disruptions which are taking place in West Asia. Any disruption of supply chains or any mitigation measures which have been discussed? Ayanksha, you have a question? So this is Ayanksha Maitra. So is it possible to elaborate the last T from the 3 T's? The talent, and if it's possible, India, is a base of over 800 million cell phone bases, which, the Finnish companies, one of the Finnish mobile manufacturer marveled the technology. So is there any discussions on Indian players making cell phones, high-tech cell phones? Thank you. So we can take these questions. Yeah. Thank you very much. On the question on Arctic, if you look at the joint statement, you will see that there is a full paragraph on the cooperation in the Arctic related. Both sides reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation and dialogue on Arctic matters, including through joint research initiatives, academic exchanges, and capacity building programs. They took note of the first India-Finland Arctic dialogue, which was held in Finland, the Himalayan and Arctic ecosystems. That was the name of the dialogue which was held in Finland, which brought together parliamentarians, government officials, academics, and experts to deliberate on strategies and pathways for deepening collaboration on Arctic matters. Both leaders also underscored the importance of advancing cooperation in the structures of the Arctic Council within the broader framework of India-Nordic Summit
which would be held later this year. So cooperation and dialogue on Arctic matters was an important element of the discussions held, and it is covered in the joint statement. Moving on to the question related to West Asia and the other conflict situation. Of course, both the leaders discussed issues of interest to both India and Finland and Europe. The current evolving situation in West Asia was discussed by the leaders. As far as we are concerned, our spokesperson has already issued a couple of statements on the current situation in West Asia. I would refer you to look at those statements. We have also expressed our deep concern and called for restraint and de-escalation. On the other conflict situation, yes, of course, related to the developments in Ukraine conflict was also discussed. Again, on that, you are aware of the India's position, which has been articulated well by our leadership on several occasions. So we had, the leaders had discussions on these conflict situations. Moving on to the question on supply chain resilience, disruption of supply chains. Yes, if you look at India-EU relations, in the last 2 years, one of the important topic of discussion was to see how to build a supply chain resilience. When it is disrupted, it affects the economy of all the countries in the world, including us. We have seen it happening during conflict situations in the past. We see it happening now. So how to strengthen, how to build resilience in supply chain is an important topic of discussion in the meetings that we held, and this was also discussed in the meetings here today. Now, the question related to 3 T's. The third T which I was referring to was talent. It is related to mobility. We have, if you look at India has the largest young population in the world. And in the last few years, government has been taking steps to skill them. That skilled manpower of India is an asset to the world. So that is the talent. So when we talk about talent, we have already signed an MOU on mobility, MMPA we have signed, which is an important step in connecting the talent of India with the opportunities available in other countries. So this is an important step which was taken during this meeting. So I'm sure that it would help the youth of India to find employment opportunities in other countries, including in Finland. As you know, we already have 33,000 Indians in Finland, and most of them are young, working in the IT sector and in other high-end technology sector. So this is further, this opportunity will be, there will be further opportunities with this MMPA which we have signed today. On the telecommunication side, you want to say something? There was the ambassador will respond. Yeah, on the question of mobile phone that you mentioned, so of course the Finnish company Nokia is very well known in India, but as you are aware, over the last decade, Nokia has moved away from making mobile phones to making the networking equipment. In fact, if we see the 5G equipment that has been used by Indian cell phone providers, it's basically coming from Nokia. Of course, certain patents that were there of Nokia, so there are some startups have come out in Finland, and one of the startup has already started manufacturing in India. But it's at a very small scale, not like the old Nokia phone.
We still have questions, so we'll go here first. Uma. मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग हटकर है, क्योंकि फिनलैंड जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में पिछले 7-8 सालों से नंबर 1 पे चल रहा है। तो क्या वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि आप लोगों का भी आजकल ठीक नहीं चल रहा, तो वर्क लाइफ बैलेंस और कैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में हम अपने देश को ऊपर लेके आए, इस मुद्दे पे कोई बातचीत हुई? Kadambari. Kadambari Sharma, independent journalist. Sir, while having this conversation about reforms in the UN, was there any change in required parameters or understanding, given that UNSC members, 2 members, have undermined the UN like never before? Okay. Keshav, you have a question? Clarification to my Please. question. Sir, thank you. Thank you again for this. I just had a clarification. I just wanted to understand why, how in the joint statement no mention of West Asia when the conflict is ongoing is made, when there is a clear reference to the war in Ukraine. So was there a reason why West Asia was left out of this statement, sir? Thank you. Sir, mine is also a small clarification on whether essential imports of oil, gas, and many other commodities, whether that issue was also discussed for both the economies and also for both India as well as the EU. Sir, if you can respond to these questions. Again, thank you very much. Yes, you are right, absolutely right. Finland has been on the top in the happiest country index, life, work balance, etc., etc. There are several factors. In fact, this was also referred to by the president in his address today at the Raisina, correct? Yes. And also in the press statement. And also in his press statement. But he also said one more thing. He said that India, in optimism index, India is the top country. His experience having visited India and having watched India, India is a country where people think that tomorrow would be a better day for us, for each one of us. That is where, I'm adding to that. That is where our vision comes. We are a country which has a vision. 2047, Vikasit Bharat. We are in that Amrit Kal journey. That is the vision. So I could see that when happiest index and optimism index, there is a very clear convergence. And when we work with Finland closely, I think we would be able to develop India into also as a happiest country. Thank you. Let me move to next question on UNSC. Yes, very important question. Of course, reform of UN and United Nations and other international institutions have always been a priority for India. And the President in his address and also in his meetings highlighted the importance of having India to become a permanent member of the UN Security Council. On your question about UN getting undermined, it is very important that the reform of the UN takes place. UN, unfortunately, is stuck in the past. The reality, the geopolitical reality, geo-economic reality of today is not getting reflected in the United Nations. So there is an understanding, there is a growing understanding among all the countries there is need for UN Security Council reforms, UN reforms, and also reform of other international institutions. Have we reached there? No, we haven't reached there at all. So there is a long way to go, but the support for the reforms is growing, and today the President has again reiterated his support for India to become a permanent member of the UN Security Council. Thank you. Moving to the West Asia, I thought I covered that already. It was discussed in the meetings which our leaders have held today, and it's an evolving situation.
Our spokesperson has already issued a couple of statements on that. I would refer to that. I'm also would like to mention that there is a statement by Indian Navy as well today, no? Yeah, there's a press release by the Indian Navy which you Okay. can also have a look. Import of oil, gas economy, again, our position on this have been well articulated by the leadership in the past, by Foreign Secretary recently, also in his press conferences, so I will leave it at that. We are monitoring the developments very closely. Thank you. With that, ladies and gentlemen, thank you for your presence. We come to the close of this press briefing. Thank you. तो फिनलैंड के राष्ट्रपति की जो यात्रा है उसको लेकर यहाँ विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता की बताया किस तरीके से जो दोनों देश हैं उनके बीच 3T यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो किस तरीके से मोबिलिटी, डिजिटलाइजेशन, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसको लेकर जो अहम समझौते हैं वो हैं, उसकी जानकारी इस प्रेस वार्ता में दी गई। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। दिल्ली सपनों का शहर, जहां मेहनत कभी नहीं रुकती, लेकिन मेहनत के बीच 2 वक्त का भरपेट और सम्मानजनक भोजन हर किसी का हक है। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लेकर आई है 100 करोड़ रुपए की बजट के साथ अटल कैंटीन। सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक, स्वच्छ और भरपेट भोजन। किसी के स्वाभिमान को ठेस न आए कि मैं फ्री में कुछ भोजन खा रहा हूँ, वो 5 रुपए दे के भी भोजन खाएगा तो सम्मान के साथ खाएगा। गरीब भाई बेचारा खाना खा के चैन से सो जाता है रात को, और सुबह उसको पता है कि मुझे टाइम पे खाना मिलेगा। अटल कैंटीन, सम्मान के साथ सस्ता और सेहतमंद भोजन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब रायसीना डायलॉग 2026 के शुभारंभ सत्र में शामिल हुए। नई दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में कई देशों के नेता, मंत्री और नीति निर्माता शामिल हुए। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में बदलते वैश्विक हालात पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि दुनिया जिस मोड़ पर है वहां से आगे ग्लोबल साउथ, विशेषकर भारत की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। The global power balance has shifted. The global south has both demography and economy on its side. I mean, here we are in a country which is portraying
growth rates of 7%, probably projecting all the way to 2047, and at the same time, it's the biggest democracy in the world. फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत की नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। You have invested in your own security and actively developed partnerships in many directions. Your approach makes sense. You represent 1/5 of the global population, together with Finland. And you cannot be a mere follower. You have to be an active and independent actor. The Europeans have now also been taught a lesson from India. Passivity is not a strategy. We have to develop our capabilities, avoid harmful dependencies, and strengthen our global partnerships. तो वैश्विक परिदृश्य में अगर देखा जाए भारत की जो भूमिका है कितनी खास है, उस पर इन्होंने यहाँ पर ध्यान दिया फिनलैंड के राष्ट्रपति ने। और इसी को लेकर आज हमारा जो विशेष है वो भी रहेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। भारत की कूटनीति, रायसीना डायलॉग, जी हाँ, किस तरीके से एक महत्वपूर्ण कूटनीति जो है भारत की वो यहाँ नजर आती है। और इसको लेकर चर्चा के लिए आपको बता दें, दो खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत की कूटनीति जो है, रायसीना डायलॉग जब हम कहते हैं, इसके लिए चर्चा करने के लिए विवेक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, विजिटिंग फेलो हैं ORF के, और प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। सबसे पहले यहाँ प्रोफेसर अंशु जोशी आपसे जानना चाहूँगा, किस तरीके से आप देखती हैं जब हम यहाँ रायसीना डायलॉग की बात करते हैं, भारत की कूटनीति की एक झलक, और वैश्विक परिदृश्य में जब भारत की भूमिका की हम बात करते हैं, तो क्या इसके ज़रिए वो रेखांकित होती हुई हमें यहाँ नज़र आती है? अंशु जी, आपसे गुजारिश है, अनम्यूट अपने आप को कर लीजिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूं और डॉक्टर विवेक मिश्रा, मेरे को पैनलिस्ट, सम्मानित को पैनलिस्ट, उनको धन्यवाद दूं, क्योंकि रायसीना डायलॉग के आयोजक करता है और बहुत अच्छे से रायसीना डायलॉग 2026 की आज शुरुआत हुई है। इस प्रकार के वातावरण में, तब जबकि हम अपने आसपास एक बड़ी उथल-पुथल देख रहे हैं, दो युद्ध लगातार चल रहे हैं। इसके बीच हमने देखा कि अमेरिका ईरान का जिस प्रकार से युद्ध लगातार और घातक होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, तो ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में जब पूरा विश्व एक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, तो इसमें जब हम ऐसे रायसीना डायलॉग जैसे कार्यक्रमों को देखते हैं, तो ये भारत का एक कूटनीतिक संदेश है पूरे विश्व को कि ये जो समय है ये युद्ध के लिए नहीं है। भारत का ये भी संदेश है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हम काम करें, वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन से हम काम करें, और वैश्विक लक्ष्यों को किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, समस्याओं का समाधान कैसे खोज सकते हैं। तो हमारी जो अभी की कूटनीति है वो इसी पर आधारित है। दर्शन सबकी भलाई का है, पूरी वसुधा को परिवार समझने का है, और कूटनीतिक दृष्टि से बायलैटरली और मल्टीलैटरली हम कैसे एंगेज हो सकते हैं इसका, और यही हम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और खासतौर से विवेक जी, जिस तरीके से अंशु जी ने भी कहा, आयोजकों में से हैं आप, जब हम रायसीना डायलॉग की बात करते हैं, किस तरीके से अगर देखा जाए ना सिर्फ भारत की भूमिका बल्कि पूरे विश्व को अपनी जो कूटनीति है उससे कहीं ना कहीं उससे परिचय कराना, और साथ ही जो हमारे लक्ष्य हैं उसको लेकर चलना, जिसमें जो शांति है वो हमें सबसे पहले नज़र आती है, संयम है वो हमें नज़र आता है। और आज भी हमने देखा किस तरीके से फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस मंच से ये बात खुलकर कही कि जब ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, जब विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, तो वहाँ भी भारत की भूमिका कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। जी, ये कुछ सालों से ऐसा तो वाकिफ हो गया है कि जो ग्रेविटी है जियोपॉलिटिक्स की, वो इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत की तरफ खींच कर आ गई है, और भारत उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। जी। उस लिहाज से डिप्लोमेसी, जो यूरोप है, पहली बार यूरोप ब्रिक्स की बातें कर रहा है, पहली बार G7 G20 की बातें कर रहा है। जी। तो आपको जो रेखाएं हैं वो साफ नजर आती हैं, ग्लोबल ट्रेंड्स में कैसे बदल रही हैं, और अलेक्जेंडर स्टुब मेरे ख्याल में जो उन्होंने कहा है वो इसी पे आधारित है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि डिप्लोमेसी में रायसीना डायलॉग का एक अलग स्थान है, क्योंकि ये काफ़ी समय से देखा गया था कि आप म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो या फिर और भी IISS जैसे शैंग्रीला डायलॉग कराती हैं, ये भारत और ग्लोबल साउथ का एक अलग स्थान है इस डिप्लोमेसी में, जो मेरे ख्याल से एक उभर के आता है, जिसमें करीबन 3000 के करीब लोग आते हैं, अलग अलग देशों से, 110 देशों से लोग आते हैं। जी। तो ये एक जो मैसेज हम देना चाहते हैं ग्लोबल साउथ से
खासकर भारत के पोजीशन से ये मेरे ख्याल से साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेंथन होता जा रहा है। और इस साल का जो मेन मैसेज है संस्कारा, वो उससे ये जाहिर होता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी पॉलिसी, हमारी नीति कैसी हो और कैसी है और कैसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और जब हम नीतियों की बात करते हैं, खासतौर से प्रोफेसर अंशु, अगर देखा जाए ना सिर्फ एशियाई जो देश हैं उनके साथ, बल्कि पूरे विश्व के जो देश हैं, पूरे विश्व के कल्याण की हम बात करते हैं और कैसे तमाम वो मुद्दे जो कि उनके लिए चुनौती बन चुके हैं, भारत उनके समाधान की बात करता है, उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। निश्चित तौर पर यदि हम 3 क्षेत्रों की ओर देखें, हम सबसे पहले अभी जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, जिस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से संकट बना हुआ है, अलग अलग युद्ध चल रहे हैं, तो उसमें कैसे इन युद्धों को अंत की ओर ले जाया जा सकता है, किस तरह से स्टेक होल्डर्स को डिप्लोमेटिक टेबल पर ले जाया जा सकता है, उसकी बात भारत करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से इस बात का संदेश देते हैं कि वार्तालाप करना चाहिए और समाधान खोजना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आप देखें कि जिस प्रकार से लगातार शक्ति की परिभाषा, तकनीक बदलती चल रही है, जिस तरह से आज के दौर में हम आज के दौर की समस्याओं के साथ साथ आगे का ट्रेंड भी देख रहे हैं कि वो एआई बेस्ड होगा। तो एआई गवर्नेंस को लेकर के बात करना, एआई के नियमनों को लेकर बात करना, लेकिन उसमें ग्लोबल साउथ के देश कहीं पीछे ना रह जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमने दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट भी होस्ट किया था। सेमीकंडक्टर्स को लेकर, सप्लाई चेन्स को लेकर के बात करना, डिजिटाइजेशन की, तो ये तकनीक के डायमेंशन में नॉर्थ को साउथ से जोड़ते हुए भारत बात करता है। और फिर यदि मैं अर्थव्यवस्था की ओर जाऊं तो किस तरह से सबका विकास हो सके, सबका विश्वास हो, साथ हो, तो कैसे एक वैश्विक स्तर पर ये तमाम, अभी बीच में जैसे हमने जो टैरिफ के इश्यूज देखे, तो किस तरह से अलग अलग बैरियर्स को समाप्त करते हुए, सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बनाते हुए, अलग अलग एफटीएस के माध्यम से भारत काम कर रहा है। एक समाधान की भूमिका यहाँ भी पहले से भारत की नजर आती है। लेकिन विवेक जी, एआई की हम बात करें, डिजिटल गवर्नेंस की बात की जाए, इसके अलावा और कौन से विषय जिन पर खास चर्चा जो है वो हम मान सकते हैं रायसीना डायलॉग में होने वाली है? कई क्षेत्र हैं, जैसे डिफेंस हो गया, पार्टनरशिप, सिक्योरिटी, एक जैसा अंशु जी ने बताया कि एक अहम मोड़ ले रही है और वो क्रिटिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशंस के लिए रायसीना डायलॉग में। प्लस क्रिटिकल मिनरल्स, आपने देखा होगा पैक्ट सिलिका हो, चाहे अदर ग्रुपिंग्स हो, कंट्रीज काफी अलाइन कर रहे हैं कि हमारे सप्लाई चेन्स सिक्योर हों और प्रिडिक्टेबल हों। और खासकर आप देखेंगे युद्ध हमारे करीब आता जा रहा है। पहले यूरोप में था, अब मिडल ईस्ट में जैसे फैल रहा है, उसकी तैयारी हम कैसे करें, इन मामलों पे खासकर काफी चर्चा होंगी। बट डिजिटाइजेशन, यूपीआई, खासकर डिजिटल में हम कितने एक्सपोर्ट्स कितने देशों को किस तरीकों से दे सकते हैं, इन मामलों पे भी काफी मुद्दों पे विषयों पे बात होगी। जी बिल्कुल, तमाम अहम विषय, इन पर जो चर्चा, एक सार्थक चर्चा होती हुई हमें यहाँ नजर आएगी। ये मंच है सहयोग का, समृद्धि कैसे वैश्विक कल्याण की जब हम बात करते हैं वो इसके जरिए हमें यहाँ नजर आएगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रायसीना डायलॉग जिसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है और हमने देखा किस तरीके से न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि फिनलैंड के जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पर पहुंचे थे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप, प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े ना भर सकते हैं। कहने लगे नी रिप्लेसमेंट 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आपको बता दें, भारत और फिनलैंड के रिश्तों को नई गति देने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्तुप के बीच हुई मुलाकात कई मायनों में अहम रही। इस दौरान हुई द्विपक्षीय बैठक में कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी से लेकर पर्यावरण, डिजिटलीकरण और हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, जिससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत फिनलैंड सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्तुप की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कई अहम समझौते हुए। इनमें माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, आधिकारिक सांख्यिकी और पर्यावरणीय सहयोग से जुड़े सहमति पत्रों का आदान प्रदान शामिल है। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को डिजिटलीकरण और स्थिरता संबंधी रणनीतिक साझेदारी का रूप देने का फैसला किया, जिससे एआई से 6G टेलीकॉम और क्लीन एनर्जी और क्वांटम कंप्यूटिंग तक हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। पीएम ने कहा कि फिनलैंड भारतीय छात्रों और टैलेंट के लिए पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। भारत फिनलैंड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को पीएम ने दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाला बताया। दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए आज हमने फिनलैंड के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। इसके साथ हम जॉइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड एक रोल मॉडल है। आज हमने टीचर ट्रेनिंग, स्कूल टू स्कूल पार्टनरशिप और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। पीएम ने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने को भारत फिनलैंड की साझा प्रतिबद्धता बताया। पीएम ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता और अनिश्चितता के बीच भारत और यूरोप सहयोग की नई इबारत लिख रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत और फिनलैंड कानून के शासन और संवाद एवं कूटनीति में विश्वास रखते हैं। हम एक मत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने पीएम के नेतृत्व में भारत में हुई आर्थिक प्रगति और सकारात्मक बदलाव की जमकर प्रशंसा की।
salute your diplomatic skills when you say that we stand here as two big democracies. There is one big and one slightly smaller, but I think the key message is that we share values. I would also like to congratulate you for your leadership. My last visit to India was actually in 2013 in my capacity as Minister of Trade. And the change that I just see on the streets of New Delhi and that I will most probably see in Mumbai in a couple of days is palpable. This is an economic miracle that we're witnessing, and I wish you all the best. भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग में विस्तार की दिशा में गुरुवार को हुए समझौते और निर्णय बेहद अहम माने जा रहे हैं। पीएम और फिनलैंड के राष्ट्रपति की मुलाकात में रिश्तों की ये गर्मजोशी साफ नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। न्यूज नाइट में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। आइए बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर, जिसके लिए अगर देखा जाए तो सियासी सरगर्मी तेज होती नजर आई। 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हो गई, जिसमें कई प्रमुख नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। अब शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 16 मार्च को मतदान के साथ ही नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हो गई है। गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी, वहीं नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मार्च तय की गई है। 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 5 एनडीए उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। नितिन नवीन को बीजेपी ने 20 जनवरी 2026 को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था।
नितिन नवीन बिहार के बांकीपुर सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। जेडीयू नेता और केंद्र सरकार में वर्तमान कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा नेता शिवेश कुमार ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा नामांकन के बाद उनका स्वागत किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के तौर पर प्रवेश करेंगे, तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं। श्री नितिन नवीन जी राज्य में लंबे समय तक यशस्वी राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। छत्तीसगढ़ से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं छत्तीसगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार फूलो देवी नेताम ने अपना नामांकन दाखिल किया। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राहुल सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा में नामांकन दाखिल करने के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं टीएमसी के राज्यसभा उम्मीदवार कोयल मलिक, मेनका गुरुस्वामी, राजीव कुमार और बाबुल सुप्रियो ने राज्यसभा 2026 चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। असम की 3 राज्यसभा सीटों के एनडीए गठबंधन के 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा की ओर से कैबिनेट मंत्री जोगेन मोहन और दुलियाजान विधानसभा क्षेत्र के विधायक तेरेस ग्वाला साइकिल पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वहीं तीसरी सीट के लिए एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल यूपीपीएल के अध्यक्ष प्रमोद बोडो ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा व मंत्रिमंडल के कई सदस्य और भाजपा नेता उपस्थित रहे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर ज्योति वाघमारे को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सोलापुर की रहने वाली डॉक्टर वाघमारे ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक विद्वान और जुझारू व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में उद्धव गुट को झटका लगा है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पार्टी की भूमिका स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने शरद पवार को समर्थन देने का फैसला लिया है। वडेट्टीवार ने कहा कि शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं और महाविकास अघाड़ी के धर्म का पालन भी आवश्यक है। तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल और बीजेपी नेता सुजीत कुमार ने ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। ओडिशा कांग्रेस, बीजेडी और सीपीआई-एम तीनों ने साझा उम्मीदवार दत्तेश्वर होता को समर्थन देने का फैसला किया है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी चीफ नवीन पटनायक ने दोनों उम्मीदवारों संतृप्त मिश्रा और दत्तेश्वर को बधाई दी। I am very glad to announce that both our candidates are 2 candidates for the Rajya Sabha elections. I congratulate both of them and I'm sure they'll have a very happy victory. कॉमन कैंडिडेट बीजेडी, कांग्रेस और सीपीएम तीनों मिलके आज 15 सदस्य हमारा है, उस पर हम लोगों ने तय किया है। और डॉक्टर दत्तेश्वर होता एक सेवक जैसे काम किए हैं। डॉक्टर इज ए फेमस पर्सन, यूरोलॉजी में उन्होंने रिवोल्यूशनरी कदम उठाए। जो मुद्दा ओडिशा का विकास के लिए, ओडिशा समृद्ध होने के लिए जो जो इश्यू आएगा, इश्यू में हमारा योगदान रहेगा। राज्यसभा चुनाव के लिए यदि राज्यवार बात करें तो महाराष्ट्र में 7,
तमिलनाडु में 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5, ओडिशा में 4, असम में 3, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 2-2 तथा हिमाचल प्रदेश में 1 सीट के लिए मतदान होगा। हालांकि राज्यसभा चुनाव में किसका गणित भारी बैठता है, ये तो 16 मार्च को परिणाम घोषित होने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 16 मार्च को मतदान के बाद नतीजे जो हैं वो सबके सामने होंगे। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDS का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDS का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। आपको बता दें, ईरान अमेरिका इसराइल संघर्ष और भी भीषण हो चुका है। इस बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचे। उन्होंने शोक पुस्तिका में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी के प्रति संवेदना व्यक्त की। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ 9 में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।